Hi friends, good morning. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, it has been a very long time I have not uploaded any video, and I have received an email also from YouTube stating that it's been a long time. You have not uploaded any video, and within 30 days you need to upload a video in order to keep your account active. Right. So I thought I should upload a video, though I'm not a frequent uploader, and I don't have that time to make full day videos and upload it on YouTube and so on. But still, we will try to make some live profit now, and this way I will be able to show the new strategy which I have created. So these are the three different strategies. However, the formula is kind of almost the same. So you can see these stocks are okay. Right now the date is first of all 21st of June, which is Wednesday today, and the day and the time is 9:08. Right, and a few of the trades were of yesterday, which are showing right now again. Oh man, yesterday PEL came in the scanner SRF, so I guess these are all opening gap up. All right, so this is the buying side scanner and this is the sell side scanner, right? So these are the three different strategies: the intraday trader, the nuclear trade, and target infinity. So the trades might be almost the same as you can see as of now. So this is the pre-opening which has been closed, and the market is about to open in about 6 minutes. और मैं कोशिश करूँगा कि I'll try to speak in Hindi and English both, because my previous videos are in complete English and many people have complained. बहुत लोगों ने complain किया है कि आप थोड़ा हिंदी में भी बताया कीजिए तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी. So friends, अभी हम देखेंगे कि मार्केट को ओपन होने देते हैं, ठीक है, और उस बीच में मैं पॉज भी कर दूंगा because unnecessary I would not like to stretch the video. And this is the Kite account, and also this is my ICICI trading account, and as you can see there is no open position as of now in F&O segment. This is the F&O segment, this is the stocks. In F&O segment there is no open position, and we will try to make some live trades as of now. But let's see what this strategy is saying as of now. So PEL is opening 7% up. Yesterday it came in the scanner. Let me show you the yesterday's alert. ये कल PEL भी आया था, श्रीराम फाइनेंस भी आया था. टारगेट इन्फिनिटी में देखिए PEL आया था 11:50 पे, राइट. अब PEL को अगर हम चार्ट 11:50 पे देखें तो कल देखेंगे कि PEL कितना चला था, ठीक है. उसी हिसाब से फिर हम, और आज ही 7% ओपन अप हो रहा है क्योंकि PEL में कोई न्यूज़ भी है आई गेस, कुछ स्टेक सेल की और समथिंग. सो लेट्स सी, PEL को हम अपने चार्ट पे लगाएंगे. System seems to be slow. Okay. सिस्टम बहुत स्लो हो गया है, आई गेस ये रिकॉर्डिंग की वजह से है. सो कल जैसा कि हम देख रहे थे, कल ये स्टॉक आया था PEL 11:50 पे. ये है टारगेट इन्फिनिटी स्कैनर. टारगेट इन्फिनिटी कौन सा वाला है? टारगेट इन्फिनिटी ये वाला है. अगर हम दूसरे वाले में देखें तो कितने बजे आया था? PEL 11:50 पे टारगेट इन्फिनिटी में आया था. और अगर हम इसमें न्यूक्लियर ट्रेड में देखें तो PEL आया था 12:50 पे.
तो मतलब पहले हमें टारगेट इन्फिनिटी में मिल गया। सो जैसा कि मैंने बोला ये ऑलमोस्ट द सेम ही है, किसी में पहले आएगा किसी में बाद में आएगा, बट ऑलमोस्ट ट्रेड्स आपको सभी उसमें मिलेंगे टारगेट। अब ये इंट्राडे ट्रेडर में कब आया, इंट्राडे ट्रेडर में पीईएल आया 1150 पे, ठीक है 1150 पे पीईएल आया, और 1150 के बाद हम देखते हैं कि ये स्टॉक कितना चला। कल, ये कल की डेट है 20 तारीख की, आज 21 तारीख है, yesterday it was 20, so on 20th it came around 1150, यहाँ पर 826 पे आया, और 826 के बाद ये 841 रुपये गया था, ठीक है, और आज ये ऑलरेडी 7% अप है। सो एनीवेज we will not kind of watch this. The reason is it is already opening gap up and 2 more minutes to go. And also Shriram Finance. Now let's check Shriram Finance as well. Shriram Finance. Shriram Finance is opening 10% up. Oh man. Shriram Finance came in the scanner at 211 yesterday in intraday trades, and in Infinity, target Infinity at 211, okay, and in nuclear trade at 117. So nuclear trade ने पहले ही दे दिया था Shriram Finance rather than these two. So when I'll make more videos on this strategy, you will come across that many at times the trades are similar, but the time is is here and there. So but no issues, let's check how the day goes. So as of now I'm focusing on Biocon, LIC, JSW Steel, IRCTC. Metropolis is already opening gap up, PVR is on sell side. Let's see how it works. So guys, I'm going to mute this. Wherever it is required, I'll unmute and I will make the comments. Meanwhile, you watch the screen, how the trade comes and how the stock performs, and then we will talk about the trades during the trade. तो फ्रेंड्स राइट नाउ द टाइम इज 9:16, 9:16 हुए, मार्केट ओपन हो गया है, और अभी एक ट्रेड आया है इंडिया मार्ट सेल साइड में। इसने लो बनाया है 29.65 का, ओके, और अभी ये ग्रीन में है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स ड्यूरिंग द ट्रेड। और उसके बाद REC एक आया है, जो कल भी ट्रेड आया था, जिसमें मैंने कल भी ट्रेड की थी। REC हम देखेंगे तो REC ऑलरेडी कल मैं बताता हूँ आपको किस स्कैनर में आया था।
ओके, सो आरईसी अभी हमने देखा कि ये आया था न्यूक्लियर ट्रेड में। न्यूक्लियर ट्रेड में आरईसी नो आरईसी आज आया है न्यूक्लियर में, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर में आरईसी आया था कल। ये देखिए 20 तारीख को 12:16 पे आया था। यू गो टू द चार्ट एंड चेक हाउ दी स्टॉक परफॉर्म्ड। सो मेट्रोपोलिस अभी एक स्टॉक है जो कि कल भी आया था, आज भी दोबारा आया है। मेट्रोपोलिस भी कल आया था। लेट्स चेक मेट्रोपोलिस किस में आया था। मेट्रोपोलिस 20 तारीख को 10:34 पे आया था मेट्रोपोलिस। आप जाके चार्ट पे चेक कीजिए कल कितना चला और उसके बाद आज कितना चला है। सो पीवीआर आइनॉक्स हमने ओपनिंग से पहले देखा था कि वो वहाँ पर दिखा रहा था पीवीआर आइनॉक्स सेल साइड में, और आज ये वापस से इट इज़ फॉलिंग नाउ। सो पीवीआर आइनॉक्स इंट्राडे ट्रेडर में सेल साइड में येस्टरडे में आया था। इंडिया मार्ट आज आया है। लेट्स से इंडिया मार्ट गिरता है, आज गिरता है या कल गिरता है या परसों गिरता है, दैट डिपेंड्स। बट मोस्टली जो ट्रेड्स हैं ये स्कैल्पिंग प्लस इंट्राडे है। सो एनीवेज लेट्स गो टू द स्क्रीन एज ऑफ नाउ। सो श्रीराम फाइनेंस, मेट्रोपोलिस, पीईएल, श्रीराम फाइनेंस एंड पीईएल are standing constantly at the circuit level. मेट्रोपोलिस भी भाग गया। आरईसी, पीएफसी एक और ट्रेड है जो आया है अभी। ओके, बालकृष्ण, PFC, we should watch PFC's chart. Power Finance. So guys, remember I also have to trade at the same time, so I may not be able to speak constantly, but if required then I'll definitely talk. फ्रेंड्स, लुक एट द ब्लास्ट ऑफ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ये अभी आया बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। एक बार हम देखेंगे, और ये एकदम से इसने पकड़ने का मौका भी नहीं दिया और ये एकदम से शूट अप हो गया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज किस में आया है? टारगेट इंफिनिटी और इंट्राडे ट्रेडर दोनों में। अब टारगेट इंफिनिटी में ही कितने बजे आया है? 9:19 पे और 21 मिनट हो रहे हैं। 2 मिनट के अंदर ही अंदर इसने एक बहुत ही अच्छा राइज दे दिया। 9:19 पे हम देख सकते हैं, 9:19 पे जब इसका भाव आया तो ये 2450 के आसपास था, ये 2508 के आसपास हो गया। 5 मिनट के अंदर ही इसने एक बड़ा स्पर्ट दे दिया। सीरियस $2518 तक हो गया ये।
ओके, सो ये एक ब्रेकआउट दिया है इसने 2491 लेवल से, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज का ब्रेकआउट है। एंड it can also move up to 25, 30 or 40 rupees. Okay, REC is now 63. हमने इसको भी 61 पे देखा था, 6150 पे, REC 63 हो गया। PFC 204 पे देखा था, 206 रुपये हो गया। सो अभी आई एम गोइंग टू बाय आरती इंडस्ट्रीज की 540 का कॉल ऑप्शन। Okay, so now I have bought 3,400 quantity at 6 rupees 5 paisa for Aarti Industries, because looks like that it is going to give a good spurt. Let's see. Okay, Balakrishna is now 25.23. So like I told you, it will jump up. And India Mart जो सेल साइड में आया था वो ऊपर जा रहा है। श्रीराम फाइनेंस 1750 हो गया और 2% ऊपर चला गया खुलने के बाद। Useless to keep these two stocks now because these are already 10-12% up, which opened gap up already. और अभी हम देखेंगे यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज और बायोकॉन। LIC में भी एक्सपर्ट अभी पेंडिंग है। JSW में 52 वीक हाई टच करने के कगार पे खड़ा हुआ है स्टॉक। और एक्सिस बैंक भी सेम है। मेट्रोपोलिस इज नाउ 67 हो गया। ये हमने दोनों ट्रेड मिस कर दिए, मेट्रोपोलिस और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। सो इट हैपेंस, नो इश्यूज। हालांकि अभी बालकृष्ण को और ऊपर जाना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू मी इट शुड मूव अप। सी ऑलरेडी मूविंग अप। इसका कॉल ऑप्शन हम
2500 का लगाएं तो उसमें हमें कितना मिलता, अगर हम लेते तो 66 रुपीज़ हो गया है। 70 रुपये तक हो आया है दोस्त। लुक एट द मूव, 34 रुपये की चीज़ 70 रुपये हो गई, लगभग डबल मॉर्निंग से। और कल से ये रेट 14 रुपये की चीज़ 70 रुपये हो गई। That's how the options move, you know, when the expiry is round the corner. And look at Biocon has started moving, अब ये रुक गया है। टारगेट इन्फिनिटी में HDFC लाइफ का एक ट्रेड आया है, HDFC लाइफ। HDFC लाइफ कांस्टेंट राइजर है HDFC लाइफ। चलिए HDFC लाइफ की एक कॉल लेते हैं, 13 रुपए की आ रही है जो 660 की। HDFC लाइफ का चार्ट अट्रैक्टिव है। लाइफ की 660 की कॉल हमने ली है। 5000 क्वांटिटी लेते हैं हम 14 रुपये डाल के। चलिए, और ये आएगी कितने में, 11 रुपये में, क्योंकि ये एकदम से नीचे। तो 12 रुपये में हमें 5500 क्वांटिटी मिल गई कॉल ऑप्शन HDFC लाइफ की। नाउ वी हैव टू ट्रेड्स, वन इज आरती, वन इज HDFC। Okay, so now we are earning 3,800 rupees 56 HDFC लाइफ। तो अगर हम देखेंगे तो HDFC लाइफ हमारे पास दो में आ चुका है। इंट्राडे ट्रेडर में भी है HDFC लाइफ और टारगेट इन्फिनिटी में भी है, इसमें नहीं आया। नाउ इट इज़ 57। अब हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 7000 का हो रहा है, जिसमें से हम 3300 क्वांटिटी 13 रुपये 40 पैसे डाल के और निकल जाएंगे। क्या ये बिकी? नहीं बिकी। 13 रुपये 40 पैसे में ये क्वांटिटी नहीं बिकी एंड इट इज मूविंग डाउन नाउ। अभी 7500 रुपये से 2700 रुपये रह गए। अगर हम इसका मंथ का चार्ट देखेंगे सो देखिए, लास्ट टाइम इस चार्ट में जो दिख रहा है वो ये है कि यहाँ से जनवरी में, इसको हटाते हैं, जनवरी में इसी लेवल से इसमें गिरावट आई थी। किस लेवल से आई थी? 670 से 660 की रेंज के आसपास इसमें गिरावट आई थी। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाए और इसमें गिरावट आए, राइट। लेकिन हमने एक क्विक ट्रेडिंग के लिए लिया था जिसमें हमें प्रॉफिट मिल भी रहा था, लेकिन हमने वो बुक नहीं किया। और ये जो स्टॉक है अब नीचे की तरफ आ रहा है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स।
बायोकॉन इज नाउ 46, JSW स्टील वहीं पर है। आरती को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए 10 रुपये आ गई, 11 रुपये। देयर इज अ ह्यूज वोलेटिलिटी इन दिस स्टॉक एंड ऑल्सो द ऑप्शन। आरती 540, जहाँ पर 7000 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी 6000 का लॉस हो रहा है। But according to me, it should cross above 660 levels. वो आज करे कल करे, but it should. REC now 164, PEL और ऊपर चला गया, 962 का हाई लगा दिया PEL ने। Okay, Muthoot Finance is the other trade. See this, it is now again moving up. श्रीराम MFSL भी एक ट्रेड है 56। अब हम इसमें से जल्दी एग्जिट कर जाएंगे। $11.80। So scalping means you have to be quick, otherwise you are going to lose the opportunity. 60 का भाव इसमें आना चाहिए। Any other trade? Muthoot Finance, MFSL, HDFC Life, REC is now 164.35, इसने हाई लगा दिया है। बालकृष्ण वहीं पर है अभी। श्रीराम एंड PEL तो बात करना is like wasting the time. Muthoot Finance is 12.14, the high is 12.16. Okay, now the high is 12.18. Muthoot Finance भी ऊपर जा रहा है, 1218। Metropolis is now 70. Metropolis is now 70. PFC is now 206 रुपीज़ 90 पैसा। जो हमने 204 रुपये के आसपास देखा था वो 206 रुपये 90 पैसे हो गए।
REC 164.65. इंडिया मार्ट 3003 पे है। 2965 का इसने लो बनाया था और उसी समय ये आया था। REC is now 165 I guess। चलिए HDFC भी ऊपर जाने वाला स्टार्ट हो गया है। Wow, Balakrishna's call is now 70 rupees from 65. Muthoot Finance is now 12.19. So friends, I am going mute. You watch the screen. सो फ्रेंड्स, जो हमने अभी ऑर्डर लगाया था 3000 क्वांटिटी का, वो 13 रुपये 50 पैसे में एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास बची है 2200 क्वांटिटी। ठीक है, सो अब इसको भी हम एग्जीक्यूट स्क्वायर ऑफ कर ही देते हैं, बिकॉज इट इज़ टेकिंग अ रेजिस्टेंस। इट मे मूव अप बिकॉज द strength is intact, but
For intraday, it is okay to book the profit immediately. चलिए, अब हमें इसमें मिला कितना, ठीक है, इसमें कितना मिला वो हमें देखना है। तो हमें जाना पड़ेगा प्लेस ऑर्डर में, सॉरी माय पोर्टफोलियो में, एंड वी विल सी व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर HDFC लाइफ। इसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो आज हुआ है 6,710 रुपये का, क्योंकि 660 की कॉल थी। 660 की कॉल में हमें 6,000 रुपये का प्रॉफिट लेकिन इसमें मैंने पहले भी ट्रेड किया था तो ये लॉस था 3,000 का। तो नेट हमें जो प्रॉफिट है वो 3,600 का है इन इंट्राडे। मुथूट फाइनेंस इज नाउ 1222 फ्रॉम 1218। और ये आरती नीचे आ गया। आरती को तो खैर मैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ होल्ड भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई फील दैट इट इज़ गोइंग टू गिव अ स्पॉट। LIC फाइनेंसिंग इज नाउ ऑन माई रडार। सो गाइस, एक ट्रेड जो था वो हमारा सक्सेसफुल हो गया HDFC लाइफ का। Look at PFC now. PFC is 207 रुपये now, 207 रुपये 35 पैसे। REC 165.60। Oh man, look at HDFC now, 13 रुपये 90 पैसे। Now we could have earned approximately 10,000 rupees। 14 रुपये हो गई कॉल ऑप्शन। सो आपने देखा जितने भी ट्रेड इसमें आए ऑलमोस्ट ऑल ब्लास्टेड। अब बात, मुथूट फाइनेंस इज नाउ 24, ग्रेजुअली इट इज मूविंग अप। 14 रुपये 30 पैसे, 15,000 रुपये मिलते हैं और हमने सिर्फ लिए 7,000 रुपये, विच इज़ ओके। अगर आपको एक ही स्पॉट में इतना मिल रहा है दैन इट इज़ ओके। इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रीडी यू हैव टू सी व्हाट exactly is coming in your kitty। 26 रुपये मुथूट फाइनेंस। PFC 20770 का प्राइस हो गया। ओके, सो दिस इज प्राइस, दिस इज ओपन, दिस इज हाई, दिस इज लो। सो दीज आर द डिफरेंट कोडिंग्स विच आई हैव डन। ओके, so and also if you want to look at my scanner, I don't hide anything. Look at this, see this, these are my custom made strategies. You will not find it on charting portal, you will not find it. These are my custom made strategies. Negative green candle, positive green candle, otherwise you are not going to find it। आपको नहीं मिलेगी ये। अगर आप यहाँ जाके बनाने जाएंगे, आप इस सेक्शन में अगर बनाने जाएंगे 14 रुपये 25 पैसे हो गए। अगर आप इस सेक्शन में बनाने जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेंगी। ये मेरी कस्टम मेड स्ट्रैटेजीज हैं। सीरियस, अगर आप यहाँ बनाने जाएंगे तो यहाँ आपको नहीं मिलेंगी। ये नीचे आके आप देखेंगे जो मैंने कस्टम मेड बनाई हुई है, ये सारे मेरे कस्टम मेड फार्मूलाज हैं। ये लिखा है ना derived custom indicators, it is written there, derived custom indicators। So I have all made these custom indicators। So these are my custom made tailored made strategies। सब में मेरी tailored made है। See this। So formula is almost the same, somewhere here and there, that's it। Man, LIC हाउसिंग फाइनेंस जंपिंग अप। LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी एक ट्रेड लेना चाहिए था,
but I was thinking let's give it a little bit more time. Chalo, anyways, see, the way I told you that it should go to 660 rupees something, exactly it is trying to return from there 660 rupees 659.95. सो 60 रुपये 60 पैसे तक ये जाना चाहिए था, बट ठीक है, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया, इट इज़ ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी बुक द प्रॉफिट, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. REC is now 166 rupees 40 पैसे. अगर मैं आपको REC दिखाऊं तो इसमें मैंने कल ट्रेड किया था, एंड व्हाट वाज द ट्रेडिंग लाइक आई टोल्ड इन द मॉर्निंग. मैंने REC में कितने की कॉल ऑप्शन ली थी REC की, लुक एट दिस. और आज अगर मैं उसको होल्ड करता, सी दिस, REC की 160 की कॉल ऑप्शन मैंने कितने में ली थी, सी दिस, ये कल का ट्रेड है, लुक एट दिस, दिस इज 29 जून का ट्रेड. 160 जो कि कल भी स्कैनर में आया था, मैंने 2:50 पे इसको बेचा था, और मैंने 2:22 पे इसको लिया था. ये है बाय मैंने किया था 2 रुपये 15 पैसे, 2 रुपये 20 पैसे में, और 2:60 पे मैं इसको बेच के निकल गया था, जो कि क्वांटिटी बड़ी थी, और जो प्रॉफिट था दैट वाज 10,907 रुपीज़. ये कल का कॉल था, और आज उसका प्राइस चल रहा है 8 रुपये. 60,000 रुपये का प्रॉफिट अगर मैं इसको होल्ड करता तो मुझे मिलता था. बट वी शुड नॉट बी थिंकिंग कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता. अब अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मैंने होल्ड किया है, अगर मैं ये सोचता कि मैं इसे बेच देता स्टॉप लॉस लगा के, तो मेरा लॉस बच जाता. बट वो हो रहा है ना, आई कैन नॉट स्टॉप इट, ये नीचे आ गया, राइट. यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. वेरेवर यू सी द प्रॉफिट, यू नीड टू बुक इट इमीडिएटली. बात की बातें सब ज्ञान देते हैं, बट करंटली लुक एट दिस ना, 6 रुपये 25 पैसे. अब मैं ये ले लेता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता, अगर मैं ले लेता और ये नीचे आ जाता तो मुझे लॉस हो जाता. सो ये मार्केट है, ये ऐसे ही चलेगा. इसका जो होल्डिंग पॉइंट है वो 398 से 400 रुपीज़ के आसपास है, ये वहाँ तक जाना चाहिए, बट ठीक है. 635 हमारे देखते देखते ये कॉल 4.5-5 रुपये के आसपास से, नाउ इट इज 635. बट आई एम स्टिल इंटैक्ट ऑन आरती इंडस्ट्रीज, इट शुड मूव अप. REC is now 167, amazing. PFC is now 208 rupees. हमने मॉर्निंग में से 204 के आसपास देखा था. सो अगर हम इसको फिल्टर करें कि किस में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, लुक एट दिस, ये सारे ही स्टॉक इसमें हैं. सो गाइस, मैं बस ये आज एक वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ वीडियो बनाऊंगा, बट आई विल लुक एट द टाइम फर्स्ट, राइट. ये तो मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया था, ईमेल, दैट यू हैव टू यू नो अपलोड. नॉट यू हैव टू, इफ़ यू विल नॉट अपलोड द वीडियो योर सब्सक्रिप्शन में भी, और समथिंग कुछ ऐसा था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना देते हैं. So that's why I'm making the videos, but it is not my job to show the live performance every day and every time. ओके, इंडिया मार्ट जो कि सेल साइड में आया था, वो वापस से
3000 से 2980 आ गया। इसका लो है 2965 का। वी विल सी कि ये इस लो को ब्रीच करता है या नहीं करता, और करता है तो आज करता है या कल करता है। कल मैं अगर वीडियो ना भी बनाऊँ, सो यू डेफिनेटली कैन गो टू द चार्ट एंड चेक। और भी ये जो ट्रेड्स, ये कल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आज कैसा कर रहे हैं, एंड सो ऑन, आप चेक कर सकते हैं। पीवीआर की कॉल हमने मॉर्निंग में देखा था, ये 26-27 के आसपास था, और नाउ इट इज़ 32। पीवीआर सेल साइड में कल आया था, और ये 34 का इसने हाई भी बना दिया है। पीवीआर आइनॉक्स की पुट ने, सॉरी नॉट कॉल, पुट। ये वापस से रिटर्न होके आ गया नीचे। अब देखो हमने बेच दिया। अगर हम लालच के लिए बैठे रहते कि नहीं 18 जाएगा, 19 जाएगा, 20 जाएगा, एंड सो ऑन, सो इसमें हमें लॉस ही होता था। जा भी सकता है, आई मीन आई एम नॉट गॉड, आई कैन नॉट से कि ये नहीं जा सकता ऊपर। ये 800 रुपये भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है, बट जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो बुक कीजिए एंड एग्जिट आउट द कंडीशन, द ट्रेड। सो इंडिया मार्ट धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ। PFC REC constantly rising. PFC is now 208 rupees. REC is 167.50. Amazing move. Aarti again 521. Aarti should go to 535, 540 approximately. That is what I am expecting from Aarti Industries. इंडिया मार्ट भी धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है नीचे की तरफ। ओके, वापस से लुक एट दिस, 58 हो गया, 59 हो गया। यू कैन नॉट से स्टॉक कैन डू एनीथिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। So now we are left with, and why I am keeping the quantity low these days, because there is global uncertainty about the war. As you all know, ये जो एरा है ये वॉर का चल रहा है। वॉर भी है, ग्लोबल मंदी की भी आशंका है। Some economists are saying that the economic turmoil is round the corner, and so on. So it is better to avoid big trades. So आप छोटी ट्रेडिंग करें और सुखी रहें। Muthoot Finance is now 28. See, the live performance is in front of you. How the stock comes in the scanner, how the stock performs. Even for the sell side in rising market. Muthoot Finance हम उसको 1217-18 से देख रहे हैं। यस, बालकृष्ण ने ऑलरेडी एक राइज दे दिया है। See, when we talk about minting money from options, you have to be quick. You have to be quick because the options melt immediately, right? So options में बहुत जल्दी खेल होता है। अभी ये 65 से 70 पहुंच गया था, अब वापस से ये 65 आ गया, 60 भी आ गया था अभी थोड़ी देर पहले। So that's how it is. See, I have missed the move of LIC Housing Finance. Not miss exactly, इसकी जो असली रैली है वो 400 के ऊपर स्टार्ट होगी। Okay, Muthoot Finance 29 now, 30 now. आरती वापस से अपनी रेंज को कवर करता हुआ। So we are still left with one open position. The quantity is 3,400. फंसने से बेटर है आप क्वांटिटी रिड्यूस कर दीजिए। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ भी देखी हैं।
PFC is now 209 rupees. We are watching it from 204 rupees and I looked at the chart even. PFC is now 209 rupees. 209 rupees का हाई बना दिया PFC. HDFC, Balakrishna, Muthoot Finance, Metropolis, PFC, REC, MFSL. Oh man, we have missed the move of MFSL as well. 730 पे हमने इसको देखा था. MFSL 745 हो गया. MFSL को तो हम देख ही नहीं रहे. इंट्राडे ट्रेडर में MFSL कितने बजे आया था? लेट्स सी. मैं तो आपको लाइव स्कैनर पे लाइव अलर्ट्स के साथ, नो एक्सेल शीट, नो PDF फाइल, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. लाइव में जो आपको एनालिसिस पता चलेगी या लाइव में आपको जो स्कैनर की परफॉर्मेंस पता चलेगी, एक्सेल शीट में, PDF में यू कैन नॉट गेट टू नो. एक्सेल शीट कैन बी मॉडिफाइड इजीली, PDF sheet can be modified easily, WordPad can be modified easily. ठीक है. सो आप लाइव देखिए ना, जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं, आप चार्टिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो आप चार्टिंग के पोर्टल पे जाके लाइव देखिए. क्या प्रॉब्लम है? वाई डू यू नीड टू हैव एन एक्सेल शीट जब आपको लाइव सब कुछ दिख रहा है तो. बट एनीवेज, MFSL कितने बजे आया था? 929 पे आया था. अब अगर हम MFSL को देखेंगे 929 से MFSL 929 से इसने कितना स्पर्ट दिया है? MFSL ये नीचे आ गया 10 रुपए immediately. That's what it happens. Book your profit immediately. Otherwise you will keep on waiting many a times. कितने बजे आया था बॉस? MFSL 929 पे. MFSL इज नाउ 52. अभी हम इसको 45 देख रहे थे बॉस. लो जी, 52 हो गया, 50 हो गया. 929, 930 पे आई गेस, यहाँ पर इस लेवल. हाँ, तो जब हमने इसको देखा था 930 था, अब 953 का हाई लगा दिया इसने. What else do you expect from a scanner? और आरती इंडस्ट्रीज को स्कैनर का ट्रेड नहीं है. लुक एट दिस, देयर इज नो आरती इंडस्ट्रीज रिफ्लेक्टिंग. इट इज जस्ट दैट माय एनालिसिस दैट for a longer period of time it has been hovering around 518 to 522. Now it should give a spurt approximately 5 to 10 rupees more, और उसी बीच में हम अपना ट्रेड करके प्रॉफिट बना के निकल जाएंगे. और ऐसा ही मेरा LIC का भी था, लेकिन हम इसको बातों के चक्कर में मिस कर गए. बायोकॉन इज स्टिल इंटैक्ट. बायोकॉन में भी इस मंथ के एंड तक आपको 250, 252, 53 दिख जाना चाहिए, जिसमें ये कॉल ऑप्शन बढ़ने की उम्मीद है. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. So guys, I'm going mute once again. You watch the screen and enjoy. So friends, look at this now. PFC is now 211 non-stop.
और हाई इसने लगाया है 211 रुपये 90 पैसे का। PFC कांस्टेंट राइजर जब से स्कैनर में आया है, और PFC कौन कौन से स्कैनर में आया है? PFC तीनों स्कैनर्स में है। अगर हम PFC को फिल्टर करेंगे, तीनों में आया है और तीनों में ब्लास्ट हो गया है। ठीक है, अब ये आया कितने बजे था? हमने इसे 204 पे भी देखा, 203, 75 पे भी देखा। PFC आया 945 पे। ओके, PFC इंट्राडे ट्रेडर में 945 पे आया। न्यूक्लियर ट्रेड में PFC 917 पे ही आ गया था न्यूक्लियर में। सो जैसा कि मैंने आपको बोला इनिशियली वीडियो में, कोई स्टॉक जो है वो स्कैनर में किसी एक टाइम पे आएगा। कई बार ऐसा होगा दोनों स्कैनर एक ही टाइम पे देंगे, एक डिफरेंट टाइम पे देगा। कई बार ऐसा होगा कि एक में पहले आएगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर तीसरे में आएगा, इस तरह से। सो हम 917 पे अगर ये आता है 205 रुपए की रेंज के अंदर, ठीक है, 205.70 से 211 रुपये हो गया। व्हाट एल्स यू वांट? So guys, what I'm going to do, most of the trades have been good riser. Now I don't think I should stretch this video, और ये भारती इंडस्ट्रीज भी अब ऊपर आने की कगार पे है। Let's see. So I'll pause the video instead of muting. I'll pause the video, otherwise video would be stretched, and we will check by the end of the day how the performance, अगर किसी में और अच्छा स्पर्ट आता है या फिर कोई और नया ट्रेड निकल के आता है। हालांकि मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको पूरी दिन की वीडियो दिखाऊं या फिर उस पर चर्चा करूं। आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट? बिकॉज मोटिव वो नहीं है। मोटिव ये है कि आप ये देखें कि जो स्ट्रैटेजी मेकर है, द वे आई एम मेकिंग द स्ट्रैटेजीज, जो स्ट्रैटेजी मेकर है उसका एफर्ट कितना है। और ये सारे ही फॉर्मूलाज प्राइस एक्शन है, कहीं भी कोई भी इसमें वो नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, राइट? सो दैट्स इट, और कोई वो नहीं है। MFSL इज अगेन राइजिंग, 754 रुपये हो गया, ठीक है। सो एनीवेज ये तो चलता ही रहेगा, रोज का यही कहानी है, और जैसे ट्रेड करना है वो करेगा। So I'm going to pause this and we will see by the end of the day. So friends, welcome back. Right now the time is 10:27. Date is 21st of June 2023. दिन Wednesday का है, and we can see Aarti Industries as expected moving up. जो कॉल हमने 6 रुपये में ली थी वो 5 रुपये भी आ गई थी, 4.90 भी आ गई थी, और अभी 6.95 है। नाउ इट इज 7 रुपीज, एंड वी वुड लाइक टू बुक लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो राइट नाउ द प्रॉफिट इज 3,230 रुपीज। But looking at the chart, what I feel is it should move up to 535 rupees, 720. Right now the call option is 720, 735. ये जो एकदम से स्पर्ट आता है 745, look at this, 720, 2475, 2480, 750। सी वेब पोर्टल में ये प्रॉब्लम होती है, इसको रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। तो 760 अभी तक यहाँ पर 720 ही आ रहा है, 770, 755, 7,500 का प्रॉफिट है, सॉरी 5,100 का प्रॉफिट है, 760। इसमें से हम 850 की क्वांटिटी 7 रुपये 60 पैसे में 24.90। Okay, so we are booking live profit and 25, 780। देखा, ये जो आपको
सबसे बड़ी बात है कि आपको चार्ट देखना आना चाहिए। अगर आप चार्ट नहीं समझ पाते, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे नहीं आ सकता था, आज आ जाता नीचे, हो सकता है कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्ञान तभी आता है जब जो चीज़ें हैं ना वो आपकी डायरेक्शन में काम करने लगती हैं, ठीक। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका ज्ञान इतना ही बेकार हो कि चीज़ें काम करें ही नहीं। आप एक बार गलत हो सकते हैं, 2 बार गलत हो सकते हैं, 3 बार हो सकते हैं, 4 बार हो सकते हैं, 100 टाइम्स में से आप 10 बार हो सकते हैं, 20 बार हो सकते हैं, बट स्टिल अगर आप 80 बार सही हैं आउट ऑफ 100, स्टिल यू आर अर्निंग। तो 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया है बॉस, और 8 रुपये 5 पैसे, 8 रुपये 20 पैसे, 1700 क्वांटिटी हम इसको निकालेंगे 8 रुपये में। Now we are left with only 850 quantity. अब बाकी जो स्कैनर है उसको हम देख लेते हैं कि कौन सा ट्रेड कहाँ पर है। REC 168.85 का हाई मार दिया, PFC ने 211.90 का हाई मार दिया, मुथूट 218 से 230 का हाई मारने के बाद वापस से 214 है। ये अगर आज नहीं जाता ऊपर, ये 2-3 दिन में ज़रूर जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट। MFSL 55 का हाई मारने के बाद 742 पे अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि ये 730 पे आया था और 755 का हाई गया, ठीक है। बालकृष्ण हमने देख लिया, बालकृष्ण 2500 पे आ गया है, 2525 का हाई मारा इसने, 2450 पे हमको ये मिला था, 2450 से 2470 के आसपास, ठीक है। और HDFC लाइफ में हमने ऑलरेडी ट्रेड कर लिया है। श्रीराम PEL की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया दोनों ट्रेड कल आए थे, कल आने के बाद ऑलरेडी अप है, और इनमें न्यूज़ थी, ऐसा नहीं है कि स्कैनर में आने के बाद ये अप आए हैं, इनमें न्यूज़ थी, तो ये न्यूज़ ड्रिवन है आई गेस। और क्या बचा हमारे पास, बस these were the trades। PEL, श्रीराम फाइनेंस, MFSL, REC, PFC, बालकृष्ण, HDFC, मेट्रोपोलिस, मुथूट फाइनेंस। सो गाइस, आई डोंट थिंक कि आज और कुछ होगा, मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो आई गेस आई शुड होपफुली स्टॉप द वीडियो, क्योंकि आज की ट्रेडिंग तो मैं इतनी करूँगा, और इससे ज़्यादा मैं ट्रेड करूँगा नहीं। एक्सपायरी इज ऑन दी कॉर्नर, और उसके अलावा मैं वैसे भी अभी छोटे ट्रेड कर रहा हूँ, बड़े ट्रेड नहीं कर रहा, और वीडियो बनाने का सच कोई मकसद नहीं था, सिर्फ ये था कि अपने चैनल को एक्टिव रखना। मेरा कहीं से कोई इरादा नहीं है आपको मैं बार बार अपनी परफॉर्मेंस दिखाऊं, जो है वो है, राइट। परफॉर्मेंस ऐसी ही आती है, और ऐसी ही आ रही है, और ऐसे ही मेरे स्कैनर्स हैं। So guys, if you have any questions about charting, you can definitely get in touch with me, and I will definitely try and help you guys. So thank you so much, stay tuned। वैसे मैं सोच तो ये रहा था कि आज मैं कोई गाना वगैरह अपलोड कर दूँ या कुछ और कर दूँ, कुछ और ऐसा, बट फिर सोचा कि काफ़ी टाइम से चलो वीडियो भी नहीं आया, तो एक वीडियो बना ही देते हैं। That's what the intention was, and thank you so much for watching this videos guys, stay tuned, thank you।